Hello everybody, welcome back to my channel. My name is Anubhav and today in this video I am going to discuss 55 short English sentences so that you can try to speak English. Let's get started. ये किसका बच्चा रो रहा है? Whose child is beeping? Whose child is beeping? Instead of beeping you can say crying. Okay. इसकी मम्मी कहाँ है? Where is his mom? Where is his mom? If that is girl, so you can say where is her mom? तुम मुझसे पूछ सकते थे. You could have asked me. You could have asked me about any situation, about any problem. तुमने अपना दिमाग क्यों नहीं लगाया? Why didn't you use your brain? Why didn't you use your brain? तुम उनको ऐसा करने से मना कर सकते थे. You could have refused them to do so. You could have refused them to do so. तुमको एक ही गलती बार बार दोहरानी नहीं चाहिए. You should not commit the same mistake again and again. You should not commit the same mistake again and again. मुझे लाइन में खड़े हुए 2 घंटे हो चुके हैं. It has been 2 hours to me standing in a queue. It has been 2 hours to me standing in a queue. अगर वो कुएं में कूदेंगे क्या तुम भी कूदोगे? If they jump into the well, will you do the same? If they jump into the well, will you do the same in that situation? Will you repeat that situation or not? Someone is asking. मैं तुम्हारी धज्जियाँ उड़ा दूंगा. So its English will be I will laminate you. Laminate is a word which you can use in sense of something like that. धज्जियाँ उड़ाने के. Okay. मुझे अंग्रेजी में बोलने से डर लगता है. आई एम अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश. अगर नहीं लगता है तो यू कैन से आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश. वो लोगों से बात करने में अच्छा है. इट इज़ अ क्वालिटी ऑफ समवन दैट इफ समवन इज़ गुड एट टॉकिंग टू पीपल सो इट कैन बी हिज क्वालिटी. ही इज़ गुड एट टॉकिंग टू पीपल. वो मरने के नज़दीक है. ही इज़ क्लोज टू डेथ. He is close to death. तुम उससे जाकर मिल सकते हो. For the last time you can go and meet him. You can go and meet him. उसे मनाना आसान नहीं है. It's not easy to pursue her. It's not easy to pursue her. Instead of pursued you can say convince her. अंग्रेजी सीखना आसान है अगर आप तहे दिल से सीखते हो तो. इट्स ईजी टू लर्न इंग्लिश इफ़ यू लर्न फ्रॉम बॉटम ऑफ योर हार्ट. इट्स ईजी टू लर्न इंग्लिश इफ़ यू लर्न फ्रॉम बॉटम ऑफ योर हार्ट. किसी को गाली देना अच्छी बात नहीं है. इट्स नॉट अ गुड थिंग टू अब्यूज समवन. इट्स नॉट अ गुड थिंग टू अब्यूज समवन. इफ़ यू अब्यूज समवन फॉर नो रीज़न सो डेफिनेटली इट इज़ अ बैड थिंग. मैं एक ही चीज़ रोड खा खा कर पक गया हूँ. आई एम फेड अप ऑफ ईटिंग द सेम थिंग डेली. आई एम फेड अप ऑफ ईटिंग द सेम थिंग डेली. When your mother cooks every day the same thing so you can say मैं तुम्हें समझा कर थक गया हूँ या फिर ऊब गया हूँ. I am fed up of making you understand. I am fed up of making you understand. वो सूख कर काटा हो गया है. He is reduced to skeleton. He is reduced to skeleton. When someone has become so thin so you can say the sentence वो ज़रूर किसी बीमारी से पीड़ित होगा. He must be suffering from any disease. He must be suffering from any disease. Must be is a model which is shown at the time of showing possibilities. मैं आसानी से तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकता हूँ. When someone is expert at solving someone's problem so he can say I can easily solve your problem. I can easily solve your problem. Can is a model of used as मुझे पूरा यकीन है मैं सफल हो जाऊंगा. आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ गेटिंग सक्सेस. आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ गेटिंग सक्सेस. आफ्टर प्रपोजिशन वी यूज वर्ब विद ING. तुम इतना क्यों बोलते हो? वाई डू यू स्पीक टू मच. वाई डू यू स्पीक too much. When someone speak for no reason without any reason if someone is speaking so you can say मुझे पैसे कमाने में कोई दिलचस्पी नहीं है. Nowadays no one is like that person. I have no interest in earning money. I have no interest in earning money.
मुझे टीवी देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है, बट राइट नाउ यू आर प्रोहिबिटेड टू गो समवेयर, सो यू हैव टू पास आउट योर टाइम बाय वॉचिंग टीवी. इट्स ओनली चॉइस इन योर हैंड, अप टू यू. आई हैव नो इंटरेस्ट इन वॉचिंग टीवी. मुझे उससे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है. इट इज़ समथिंग लाइक एन एडवांस स्ट्रक्चर. नहीं थी, सॉरी. आई हैड नो इंटरेस्ट इन टॉकिंग टू. अगर प्रेजेंट में बनाना तो आई हैव के साथ बन जाएगा. मुझे गाना सुनना अच्छा लगता है. आई लाइक टू लिसन टू म्यूज़िक. आई लाइक या फिर आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक. इधर हमने इन्फिनेटिव को ज्वाइन नहीं किया, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग ING. ये एक साजिश हो सकती है. इट कैन बी आ कॉन्स्पिरेसी. इट कैन बी आ कॉन्स्पिरेसी. कॉन्स्पिरेसी मतलब साजिश या फिर षड्यंत्र, आप कुछ भी बोल सकते हो. मैंने दोस्ती तोड़ दी. आई ब्रोक माई फ्रेंडशिप. आई ब्रोक माई फ्रेंडशिप. इट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड वी आर यूजिंग वर्ब विथ. ये पंखा बहुत आवाज़ करता है. वाइल वर्किंग और वाइल रनिंग. दिस फैन मेक्स टू मच नॉइज. दिस फैन मेक्स टू मच नॉइज. इट इज़ प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस. ये पुराना हो चुका है. दैट कैन बी द रीज़न वाई दिस फैन इज़ मेकिंग टू मच नॉइज. दिस फैन इज़ कम्प्लीटली आउटडेटेड. दिस फैन इज़ कम्प्लीटली आउटडेटेड. दैट इज़ वाई इट इज़ मेकिंग नॉइज. इसलिए ये आवाज़ करता है. दैट्स वाई इट मेक्स नॉइज. That's why it makes noise. That's why means इसलिए, और that's is a contraction of that and is. तुम क्यों हंस रहे हो. हंसने को इंग्लिश में कहते हैं laugh and it is present continuous tense. तो रूल आप मुझे कमेंट डाउन बिलो करके बताइए जल्दी से, क्या रूल होते हैं प्रेजेंट continuous tense के. Why are you laughing? तुमने अपने हाथ धोए. When someone is coming inside your house, so you can ask him, did you wash your hands? Did you wash your hands? Definitely ask this question to that guy. Okay. Did you wash your hands? मैं धोना भूल गया. If this situation is coming out, so just you can take any action. मैं धोना भूल गया. I forgot to wash. I forgot to wash my hands. We are talking about hands. जाओ पहले अपने हाथ साफ करो. Go and wash your hands first. Go and wash your hands first. After that, try to touch anything. मैं तुमसे बात कर करके थक गया हूँ. आई एम टायर्ड ऑफ टॉकिंग टू यू. इट इज़ एन एडवांस स्ट्रक्चर. व्हेन यू गॉट टायर्ड ऑफ समथिंग, सो यू कैन से आई एम टायर्ड ऑफ टॉकिंग टू यू. वो पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन दिखता है. इफ़ समवन इज़ ड्रेस्ड अप वेल, सो ही लुक्स लाइक एन एजुकेटेड पर्सन. सो इफ़ समवन इज़ टॉकिंग लाइक दिस वे, सो यू कैन से ही इज़ नॉट एजुकेटेड बट ही लुक्स लाइक. उसने मुझसे झूठ बोला. ही लाइड टू मी. ही लाइड. इट इज़ द सेकेंड फॉर्म. सो वी हैव फ्रेम द सेंटेंस लाइक दिस वे. ही लाइड टू मी. काश तुम यहाँ होते. द सेंटेंस विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम काश हैज़ डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन. सो यू हैव टू वॉच इट ऑफ द वीडियो. यू कैन वॉच. काश तुम यहाँ होते. आई विश यू वर हियर. Now we have to use were as with you. मैं आपको यहाँ देखकर चकित हूँ. I am surprised to see you here. I am surprised to see you here. मैं वहाँ नहीं पहुँच पाया. I couldn't get there. I couldn't get there. Instead of reach, you can say I couldn't get there. Couldn't is a contraction of could and not. Remind this thing very well. आपको ये डिलीट करना पड़ेगा. व्हेन यू टॉकिंग अबाउट डिलीटिंग एनी एप्लीकेशन विच इज़ नॉट गुड, सो यू कैन से समबडी दैट मे बी अ PUBG गेम. इफ़ यू आर रिकमेंडिंग समबडी टू डिलीट इट, सो यू कैन से यू विल हैव टू डिलीट इट. मुझे आपका बर्ताव पसंद नहीं है. आई डोंट लाइक अ बिहेवियर. इफ समवन इज ट्रीटिंग यू रूडली, सो यू कैन से इन फ्रंट ऑफ हिम दैट आई डोंट लाइक अ बिहेवियर. चेंज योर बिहेवियर एज सुन एज पॉसिबल. क्या मुझे तुम्हारी अनुमति लेनी पड़ेगी फॉर डूइंग एनी वर्क, सो यू कैन आस्क समबडी will I have to take a permission. Will I have to take your permission? We are talking in compulsion. वो जल्द पकड़ा जाएगा. He will be caught soon. He will be caught soon. It is passive sentence and we have used verb with third form. अब तुम जा सकते हो. When you are giving permission to someone to go, so you can say now you can go. Now you can go. यहाँ से from here. Now you can go from here. आपको यह चीज़ जल्द से जल्द सीखने की ज़रूरत है. You need to learn this thing immediately. You need to learn this thing immediately. मैंने आपका नाम नहीं लिया. I didn't mention your name. I didn't mention your name. Didn't is a contraction of did not.
तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो, वाई आर यू गेटिंग एंग्री, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, सो यू कैन से वाई आर यू गेटिंग सो एंग्री. So you have two option and if someone is more angry so you can say so angry. मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, so its English will be I will be die या फिर I will die without you. I will die without you, मैं आपके बिना मर जाऊंगा. I will die without you. ये मामला गंभीर हो रहा है. if some matter is taking serious turn so you can say this matter is getting serious. This matter is getting serious. मैं नए दोस्त बनाने में अच्छा नहीं हूँ. आई एम बैड एट मेकिंग न्यू फ्रेंड्स. आई एम बैड एट मेकिंग न्यू फ्रेंड्स. तुम यहाँ आ सकते हो, यू कैन कम हियर. यू कैन कम हियर. कैन इज अ मॉडल ऑफ यूज्ड. रिमाइंड दिस थिंग वेरी वेल. यही था आज की सेंटेंसेस. वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों का. मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ. तब तक जय हिंद, वंदे मातरम. कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग, कीप लाइक माय वीडियो. नेक्स्ट वीडियो. बाय.